Hi, Namaskar dear students and welcome to the today's session. Today we are going to focus on UK as a study destination. Especially for the pharmacy students, those who are looking for the overseas education and they can think about the UK as a study destination, especially in this kind of situations. Currently we are facing so many global issues across the world. US visa related issues, Canada has some different sort of issues, Australia has difficulty for the getting visa and all the documentation and kind of stuff. Europe might be the different kind of challenges. In this situation, as a students, always you have to explore the different career options, and also at the same time you have to think about the different career destination options. तो आज के इस वेबिनार में हम ट्राई करेंगे कि यूके के बारे में हो सके उतना ज़्यादा समझने का प्रयास करेंगे. दिस webinar is especially for creating awareness among the pharmacy students. What are the pros and cons, and when you are making a decision about a career destination selection at that time, what kind of points you have to keep in mind, and on based upon that you are going to make a informed decision about your career. Okay, so let's we jump into today's webinar. Our agenda is we are going to focus on the 10 most important reasons behind selecting UK as a study destination. That is our first the point that we are going to cover in today's session. Second, we are going to get a better understanding about the total universities can be broadly classified into 4 different categories, and depend upon that the students can select the universities based upon their needs and requirement and financial capabilities. Okay, so we are going to try to understand the what kind of different universities and how they are classified. Especially for the pharmacy students, what are the main reasons you have to select UK as a study destination? This top 10 reasons in general to consider UK as a study destination, and these are the 10 reasons UK, especially biopharmaceuticals and pharmaceutical sectors, why that is growing in UK and what kind of career options and opportunities you can think about. This is most important elements and part of the today's webinar. When you are selecting any kind of study destination, always you have to think radical career opportunities and options, always you have to think about. Okay, so we are going to focus on 8 different career options at the same time. We have to explore and we try to get the opportunities in all different directions. Okay, तो आज का जो वेबिनार है उसका मेन एलिमेंट्स है, जब आप यूके को एज ए स्टडी डेस्टिनेशन थिंक करते हो तो ऑलवेज यू डोंट हैव टू लिमिट योर सेल्फ टू फोकस कैरियर ओनली इन यूके. You have to think about the UK as a one career options, and also at the same time you have to think about the other career options while you are studying in UK. Biopharmaceutical research oriented, what are the startups? This information can give you the guide about what kind of program you have to select and why these kind of programs can help you for the growing economy of UK. तो यूके में जिस तरह से इकोनॉमी बायोफार्मास्यूटिकल में ग्रो कर रही है उसके साथ आप कैसे अलाइन करोगे, ये पॉइंट्स आप यहाँ से थोड़ा सा समझ सकते हो. Some of the examples of the courses that can give you the bit of understanding about कैसे programs आप select कर सकते हो, and some of the scholarship options we are going to discuss in today's webinar. So these are the main and broad spectrum agenda of the today's class, and at the end of the class we are going to give you an opportunity for asking the questions and we can take it to the next level. Okay, so it's a very short, straightforward and very simple webinar. Top 10 reasons for selecting UK as a study destination. वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है. एट द सेम टाइप यूनिवर्सिटीज़ इफ़ यू आर थिंकिंग इन अदर कंट्रीज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड. फॉर एग्जाम्पल, आप दुनिया की 150 टॉप 150 यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना चाहते हो तो यूएस में डिफ़िकल्ट है आपको एडमिशन मिलना, कनाडा में भी डिफ़िकल्ट है, और यूएस में बहुत एक्सपेंसिव है कंपेयर टू यूके. तो आप यूके में वर्ल्ड की टॉप 150 यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ सकते हो. टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटी, स्ट्रॉन्ग एकेडमिक हेरिटेज,
मतलब यूनिवर्सिटीज़ 300-400 साल से यूनिवर्सिटीज़ एग्जिस्टेंस में है, और पूरे वर्ल्ड में एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यूके इज़ वेल नोन, उसका बहुत बड़ी रेपुटेशंस है। डाइवर्स कोर्स ऑप्शंस, आप जैसा बोलो ऐसे कोर्सेज मिल सकते हैं। इफ़ यू आर गोइंग टू मर्ज टेक्निकल विद द बिजनेस मैनेजमेंट, फार्मास्यूटिकल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, दैट काइंड ऑफ प्रोग्राम्स ऑल्सो यू कैन गेट इन यूके। सो बहुत सारे प्रोग्राम के वेरिएंट है, बहुत सारे ऑप्शंस है। आप जिस तरह से प्रोग्राम पढ़ना चाहते हो ऐसे प्रोग्राम्स आपको यूके में मिल सकते हैं। ओके, मल्टीकल्चरल स्टूडेंट्स कम्युनिटी, स्टूडेंट्स आर नॉट ओनली कमिंग फ्रॉम इंडिया से ही जाते हैं ऐसा नहीं है, स्टूडेंट्स आर कमिंग टू यूके फॉर एजुकेशन ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। ओके, तो आपके पास एक बहुत बड़ा ग्लोबल नेटवर्किंग एंड मल्टीकल्चरल एक्सपोजर की ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। UK universities and qualifications are accredited in high quality education system all across the world, आपका एक बहुत अच्छा reputation रहता है। This is another important point, advanced research opportunities. So majority of the research that happening all across the world, उसमें से 55% research are coming from the UK universities. तो UK universities are focusing on the research oriented education, और जो स्टूडेंट्स ऐसे प्रोग्राम्स में इंटरेस्टेड उसके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वर्क ऑप्शंस ड्यूरिंग एंड आफ्टर स्टडी, बहुत से स्टूडेंट्स को ये पता नहीं है कि अगर आप USA में पढ़ने जाते हो तो ऑफिशियली आप ऑन कैंपस जॉब कर सकते हो ड्यूरिंग द स्टडी, ऑफ कैंपस नहीं कर सकते हो लीगली। ओके, बट अगर आप कनाडा जाते हो, ऑस्ट्रेलिया जाते हो, यूके जाते हो, तो आपके पास स्टडी राइट्स, स्टडी के साथ साथ में वर्क राइट्स है आउटसाइड ऑफ द कैंपस। ओके, तो ऑन कैंपस ऑफ कैंपस दोनों जगह पे काम कर सकते हो। एंड पोस्ट स्टडी वर्क परमिट PSW का भी ऑप्शन है यूके में, इसीलिए यूके इज़ द ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट्स दोज हु आर लुकिंग फॉर एजुकेशन। और ये अनदर इम्पोर्टेंट रीज़न है, 1 ईयर मास्टर्स प्रोग्राम, दुनिया में बहुत कम जगह है जहाँ पे 1 साल के मास्टर्स प्रोग्राम्स है। दैट मीन्स ऑब्वियसली दैट्स अ कॉस्ट इफेक्टिव एजुकेशन, कल्चरली रिच एंड इमर्सिव लर्निंग एनवायरनमेंट। So learning environment is not only focused on the theory but the practical based learning opportunities are there, cost effective education and excellent global career prospects. Like once you complete your education from the UK university, you are going to recognize all across the world and good pharmaceutical companies are giving you the respect and they can offer you the job. इसीलिए आपका ग्लोबल करियर प्रोस्पेक्ट्स ओपन हो जाता है। तो ये सारे रीजंस है आप यूके को, अगर जिसको पढ़ने के लिए जाना है उसके लिए यूके इज़ कंसिडर्ड द बेस्ट करियर डेस्टिनेशन। ओके, अब यूनिवर्सिटी को अगर हम क्लासिफाइड करें, पहले हमने जान लिया कि भाई यूके जाने के बहुत सारे बेनिफिट्स तो है। ओके, अब यूनिवर्सिटीज़ को अगर हम क्लासिफाइड करें तो हम 4 कैटेगरीज में उसको क्लासिफाइड करते हैं। देखिए, सबसे पहले एंशिएंट यूनिवर्सिटीज़, मतलब यूनिवर्सिटीज़ 300-400 साल पुरानी यूनिवर्सिटीज़ है, उसको एंशिएंट यूनिवर्सिटीज़ की कैटेगरी में डालते हैं। जैसे कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हो गई, कैम्ब्रिज हो गई, दिस यूनिवर्सिटीज़ आर बहुत पुरानी यूनिवर्सिटीज़ है। उसकी लेगेसी तो थी, लेकिन दिस यूनिवर्सिटीज़ विद हेजेमनी, उसको ब्रेक करके बहुत सारी और नई यूनिवर्सिटी उभर के आई, उसको नाम दिया रेड ब्रिक यूनिवर्सिटीज़। रेड ब्रिक, आपने देखा है कि यूके का जो कल्चर है वहाँ पे रेड ब्रिक कंस्ट्रक्शंस बहुत होते हैं। तो 19th एंड 20th सेंचुरी की जो ये यूनिवर्सिटीज़ है, वो यूनिवर्सिटीज़ को रेड ब्रिक यूनिवर्सिटीज़ बोला जाता है। जैसे आप एग्जांपल देखोगे तो बर्मिंघम यूनिवर्सिटीज़ एंड यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द रेड ब्रिक यूनिवर्सिटीज़। उसके बाद मॉडर्न कंस्ट्रक्शन आया। मॉडर्न कंस्ट्रक्शन मतलब जो मॉडर्न फॉर्मेट में, जिसमें ग्लासेस और रेड ब्रिक को हटा के थोड़ा मॉडर्न लुक्स आए, तो उसको बोलते हैं प्लेट ग्लास यूनिवर्सिटीज़। ओके, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ वार्विक हो गई, यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क हो गई। यहाँ तक के क्लासिफिकेशन टाइमलाइन और स्ट्रक्चर के हिसाब से दिया गया है, लेकिन हमें ये क्लासिफिकेशन को बहुत इम्पोर्टेंटली समझना है।
UK universities are classified mainly as a Russell group of universities. Okay, अगर आप आईवी लीग यूनिवर्सिटीज़ बोलते हो यूएस में, जैसे हम आईवी लीग बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में हम बोलते हैं ग्रुप ऑफ 8. ओके, इसी तरह से यूके में वी आर क्लासिफाइड द टॉप यूनिवर्सिटीज़ एज ए रसल ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटीज़. जो मेजोरिटी ऑफ द रिसर्च फंडिंग गोज टू दीज यूनिवर्सिटीज़, वो ग्रुप है 24 यूनिवर्सिटीज़ का. ओके, तो इफ़ यू आर ए गुड स्टूडेंट्स, एकेडमिकली गुड, your focus is to study from the world's best university and study destination is UK, definitely you have to think about the Russell group of university. No doubt that is little bit expensive, but it's not a huge difference. Okay, some universities are charging about £15,000, £16,000, £17,000 for your master's program, and entry level or basic universities are charging about £13,000, £14,000. So might be you are paying £4,000-5,000 extra as a premium, but your qualification is speaking louder than that. Okay, so Russell group of universities, ideally the students, those who are seeking for the good quality education, definitely they have to think about it. Okay, तो आपकी क्लासिफिकेशन में या तो आप रसल ग्रुप में पढ़ोगे या तो नॉन रसल में पढ़ोगे. ओके, कॉस्ट इफेक्टिव में जाना है तो इस तरह से स्टूडेंट्स अपनी कैटेगरी के हिसाब से यूनिवर्सिटीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं. सो दिस आर द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्सिटी क्लासिफिकेशन इन यूके. नाउ फार्मा के बारे में अगर हम बात करें तो फार्मास्यूटिकल्स आर द की पिलर ऑफ द यूके इकोनॉमी. अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि इंडिया भी बहुत बड़ा फार्मा का प्रोड्यूसर्स है. वर्ल्ड में 4th रैंक पर प्रोडक्शन में है, लेकिन हम 14th रैंक पर वैल्यूएशन में है. ओके, वॉल्यूम में तो 4th रैंक पर है. उसका मतलब ये है कि हम लोग थोड़ी सी सस्ती वाली दवाइयाँ ज़्यादा बनाते हैं. मतलब कन्वेंशनल फार्मास्यूटिकल्स हमारा मेन फोकस है इंडिया का. ओके, जैसे कि यूके, यूरोप और यूएस, ये सारे कंट्रीज़ ज़्यादातर बायो फार्मास्यूटिकल्स या तो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस करते हैं. तो इसकी इकोनॉमी का बहुत बड़ा वैल्यूएशन इज़ ए फार्मास्यूटिकल. सेकेंड पार्ट देखोगे तो इट्स 57 बिलियन का ओवरऑल होलसेलर का टर्नओवर है. मतलब दिस द रेगुलर कंजम्पशन ऑफ द फार्मास्यूटिकल रिलेटेड प्रोडक्ट्स. ओके, यूके रैंक अमंग द टॉप 10 ग्लोबल फार्मा मार्केट. पूरे वर्ल्ड के टॉप 10 मार्केट्स में यूके इज कंसिडर. 700 से भी ज़्यादा फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज आर एग्जिस्टिंग इन UK. That means you have a great opportunity to find out employment in pharmaceutical, in wholesale market. ये दोनों में तो आप जॉब कर सकते हो. Other than that, एज ए फार्मेसी बैकग्राउंड आप डायरेक्ट फार्मास्यूटिकल स्टोर में एज ए फार्मेसी असिस्टेंट एंड फार्मेसी टेक्नीशियन भी काम कर सकते हो. तो यू हैव 3 layers ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज. यू कैन वर्क इन रिसर्च एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, you can work in wholesale, and also you can work in the retail as well. Okay, highest investment in pharma R&D, 65,000 employed in biopharmaceutical sector. अब यहाँ से आपकी सोच को बड़ा करो. जैसे कि if you are consider US as a country, 50 स्टेट से बना हुआ एक कंट्री है. अगर आप पूरे यूरोप को जोड़ दो तो 50 कंट्री से बना हुआ ये एक कॉन्टिनेंट है. ये कॉन्टिनेंट को अगर आप बड़ा एक कंट्री मान के चलो, ओके, तो आपके पास बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी के कैरियर ऑप्शंस रहेंगे. हर एक कंट्री में कुछ ना कुछ अलग फार्मास्यूटिकल्स के रिलेटेड बहुत ज़्यादा स्कोप एंड अपॉर्चुनिटीज़ है. जैसे कि अभी बायो फार्मास्यूटिकल का ग्रोथ एक्सपोनेंशियली हो रहा है, नीदरलैंड में हो रहा है, जर्मनी में हो रहा है. बायो इन्फॉर्मेटिक्स का ग्रोथ जर्मनी में हो रहा है. बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का ग्रोथ जर्मनी में हो रहा है. स्विट्ज़रलैंड इज़ ऑल्सो ग्रोविंग इन बायोटेक्नोलॉजी कंपनीज. तो इस तरह से अगर आप पूरे यूरोप को टारगेट करके फोकस करते हो तो यूके की क्वालिफिकेशन इन यूके के एजुकेशन से आपके यूरोप के डोर भी ओपन हो जाते हैं कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ के. इसीलिए यू कैन कंसीडर यूरोप एज ए एंटायर मार्केट, नॉट यूके को अकेले को समझने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप
पूरे यूरोप की अपॉर्चुनिटी को भी कैप्चर कर सकते हो। जैसे ऑन्कोलॉजी हो गया, न्यूरो हो गया, जैसे हम स्टार्टअप वाली स्लाइड को देखेंगे तब जाके आपको समझ आएगा कि जो इमर्जिंग मार्केट है, इमर्जिंग एरियाज़ है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फोकस हो रहा है और ऑन्कोलॉजी ड्रग के ऊपर वो ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दे आर मेनली फोकस ऑन द मोस्ट वैल्यूएबल प्रोडक्ट, दे आर नॉट फोकसिंग ऑन द मोर वॉल्यूम बेस्ड प्रोडक्ट्स। ओके, तो आपके प्रोग्राम्स भी उसके साथ ही अलाइन होने चाहिए कि यू ऑल्सो हैव टू फोकस टू स्टडी समथिंग that can lead your career opportunities towards the more value based career opportunities. Okay, उसका growth rate भी अच्छा है। This is very important, strong startup and innovation ecosystem। अगर आप NHS के बारे में जानते हो तो नेशनल हेल्थ सर्विसेज ऑफ यूनाइटेड किंगडम ये ऐसे रिसर्च करवाती है जिसकी डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा है। ओके, तो यहाँ से ही एक STP करके प्रोग्राम के बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे, साइंटिस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम। ओके, तो NHS आर स्पॉन्सर्डिंग ए साइंटिस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम, स्टूडेंट्स आर एंगेज इन टू साइंटिस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड दे डू देयर रिसर्च एंड वंस द रिसर्च इज कंप्लीट दैट कैन टेक इट इन टू द इकोनॉमिकल सर्कल, जैसे कि स्टार्टअप या तो वो एरिया में लेके जा सकते हैं। ओके, तो उसकी जो इकोसिस्टम है वो इंडस्ट्री एंड एकेडेमिया का जो कनेक्शंस है दैट इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस। इसीलिए फार्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो भी यूके इज़ ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी। अगर आपकी सोच को थोड़ा बड़ा करोगे तो यूके से आप यूरोप तक शिफ्ट कर सकते हो आपके माइंड को। जैसे 2 पॉइंट्स और भी अगर आप उसमें ऐड करना चाहो तो यूरोप में भी आयरलैंड इज़ कंसिडर्ड एज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर फार्मा, दैट इज़ अ डिफरेंट इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री। तो आयरलैंड हो गया, यूके हो गया और रेस्ट ऑफ द यूरोप हो गया। तो इस तरह से आपकी जो फार्मा के रिलेटेड करियर अपॉर्चुनिटी है वो बहुत ब्रॉड हो जाती है अगर आप यूके से पढ़ाई करते हो। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने यूके को आपका स्टडी डेस्टिनेशन सेलेक्ट किया, इफ़ यू हैव डिसाइडेड टू गो टू यूके फॉर योर हायर एजुकेशन, आप वहाँ पे पढ़ने के लिए जा रहे हो तो बहुत से स्टूडेंट्स को ऐसा क्वेश्चन होता है कि तो हमें वहाँ पे PR नहीं मिलेगी तो ऐसा होगा। तो वो सारे क्वेश्चंस एंड कंसर्न्स होते ही है सबके। PR मिलने की प्रोबेबिलिटी है, उसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ और सिर्फ यूके के बारे में ही सोचोगे। आप ऐसे सोचो कि सबसे पहले वंस यू कंप्लीट योर एजुकेशन, आफ्टर दैट यू हैव टू फोकस ऑन द पोस्ट स्टडी एम्प्लॉयमेंट। पोस्ट स्टडी एम्प्लॉयमेंट के ऊपर फोकस करना है। जैसे ही आपकी पढ़ाई ख़त्म हो गई, आपको PSW मिल गया, पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिल गई, वहाँ पे आपको फील्ड रिलेटेड जॉब ढूंढना है। जैसे ही आपको फील्ड रिलेटेड जॉब मिल गई तो उसके बेस पर आप लॉन्ग स्टे में कन्वर्ट करवा सकते हो। लॉन्ग स्टे में कन्वर्ट करने के बाद यू कैन अप्लाई फॉर योर परमानेंट रेसिडेंसी और सिटीजनशिप में जा सकते हो। तो अगर आप अच्छी क्वालिटी की यूनिवर्सिटी से अच्छे डिमांडिंग प्रोग्राम्स पढ़े हो तो आपके पास पोस्ट स्टडी प्रॉपर और अच्छी एम्प्लॉयमेंट मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ओके, और उसके बेस पर आप वहाँ पे लॉन्ग स्टे मतलब PR के लिए एलिजिबल हो जाओगे। हालांकि थोड़ा टाइम लगता है बाकी कंट्रीज़ के कंपेयर में, पर अगर आप देखो तो कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया में PR के स्ट्रेट फॉरवर्ड है, USA में बहुत डिफ़िकल्ट है। तो ये दोनों के बीच का रास्ता आप UK को सिलेक्ट कर सकते हो। PR की अपॉर्चुनिटीज़ तो है ही, हाई क्वालिटी एजुकेशन भी है। तो इस सिचुएशन से आप ऑप्शन में UK को थिंक कर सकते हो। अब मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट्स बहुत ही स्टूडियस है एंड स्टूडेंट्स इज़ वेरी मच फोकस अबाउट देयर हायर एजुकेशन एंड PhD। तो उसने क्या किया, 1 साल के मास्टर्स प्रोग्राम में एडमिशन ले लिया। अब ये मास्टर्स प्रोग्राम में इतना अच्छा परफॉर्म किया, प्रोफेसर के साथ में बहुत अच्छे रिलेशंस बनाए, रसल ग्रुप यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की, क्योंकि वो लेवल की यूनिवर्सिटीज़ में बहुत ज़्यादा स्पॉन्सरशिप भी आती है और बहुत ज़्यादा फंड भी आता है। ओके, अब वो गवर्नमेंट के फंड्स भी आते हैं, प्राइवेट कंपनी के रिसर्च फंड भी आते हैं और उसके प्रोफेसर्स जो है वो बहुत सारी कंपनियों के कंसल्टेंट भी होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप एक हाई क्वालिटी और अच्छे स्टूडेंट्स हो तो आपको स्पॉन्सर्ड PhD मिल जाता है। अब आप स्पॉन्सर्ड मिल गया, PhD भी कर रहे हो, जैसे ही आपकी PhD ख़त्म हो गई और वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज़ है तो आपके तो वैसे ही सोना सोना हो गया सारी जगहों पे। उसके बेस पर इजीली आप H1 के लिए भी फाइल कर सकते हो
ऑस्ट्रेलिया का इमिग्रेशन ईजी हो जाएगा, कनाडा का इमिग्रेशन ईजी हो जाएगा क्योंकि आपने पीएचडी किया है, और आपको यूके एंड यूरोप के भी कैरियर अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाएगी. तो दोज हु आर वेरी सीरियस एंड गुड क्वालिटी स्टूडेंट्स, दोज हु आर इंटरेस्टेड टू गेट इनटू पीएचडी काइंड ऑफ प्रोग्राम्स, always you have to select the good master's program, put your 100% efforts, do small project in such a great subject that has a extension potential. और वो हिसाब से अगर आप पहले से ही पूरा प्लानिंग करके चलते हो तो आपके मास्टर्स के प्रोजेक्ट को एक्सटेंड करके पीएचडी में कन्वर्ट करके आगे बढ़ सकते हो. दैट इज कंसिडर्ड एज ए इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम. ओके, तो ऐसा भी ग्रेट अपॉर्चुनिटी बन सकता है. ओके, फास्टेस्ट ग्रोइंग एंड इमर्जिंग ग्रेट अपॉर्चुनिटी इन यूरोप. अगर मान लो कि आपने ये सारे ऑप्शंस तो एक्सप्लोर करके रखे हैं, बट व्हेन यू आर गोइंग टू कंप्लीट योर एजुकेशन, when you are on your post study work permit, during post study work permit you are going to find out a great employment in UK. At the same time you are also going to find out the great opportunities not only in UK but also in the other European countries and also in Ireland as well. Okay, तो वहाँ से आपका जो देखने का स्कोप है वो बड़ा हो जाएगा. ऑस्पेप, अगर मान लो कि कोई स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि दे वांट टू गेट इनटू फार्मेसी लाइसेंसिंग प्रोसेस, सो वंस यू कंप्लीट योर स्टडी, ड्यूरिंग दैट टाइम इफ यू हैव स्टार्टेड वर्किंग इन फार्मेसी एज ए फार्मेसी टेक्नीशियन, and after completion of that or during your post study work permit, if you are interested to get into licensing process, 100% you have to think about the OSPEP. Once you complete your OSPEP, you become the registered pharmacist, and after becoming registered pharmacist you have a multiple options for a long stay and permanent residency. Okay, क्योंकि हाईएस्ट डिमांडिंग है. दूसरा, आप बिजनेस वीज़ा में भी जा सकते हो, जैसे कि इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू स्टार्ट योर ओन फार्मेसी बिजनेस. बहुत सारे ऐसे लोग भी आपको मिल जाते हैं कि उसके साथ में आप कॉल अप करके आप फार्मेसी बिजनेस में एंटर करके यू कैन गेट इनटू स्पेशल काइंड ऑफ वीज़ा. तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है जिसको रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनना है, जिसको पीएचडी करना है, जिसको ग्लोबल बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में सोचना है, जिसको वहाँ पे ही अच्छा कैरियर ऑप्शंस के बारे में सोचना है. उसके बाद देखो, तो अगर किसी को बहुत ज़्यादा रिसर्च में इंटरेस्ट है और उसने अपनी ड्यूरिंग ग्रेजुएशन भी रिसर्च में कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ की है, अपने पब्लिकेशंस किए हैं, अगर वो लेवल के स्टूडेंट्स हैं तो एसटीपी के बारे में 100% सोचना चाहिए. साइंटिस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम ये नेशनल हेल्थ सर्विसेज का 100% स्पॉन्सर्ड विथ स्टाइफंड. उसका मतलब आप 3 साल फ्री में मास्टर्स बाय रिसर्च पढ़ोगे और आपको स्टाइफंड भी मिलेगा. मतलब ऐसा समझो कि जॉब के साथ साथ में पढ़ाई भी करोगे, ग्रेट यूनिवर्सिटी से आपको रिसर्चर का टाइटल भी मिलेगा और पैसे भी मिलेंगे. लेकिन ये कॉम्पिटिटिव बहुत है, इसीलिए इफ़ यू आर रियली गुड स्टूडेंट्स, योर बैकग्राउंड इज़ फ्रॉम द रिसर्च, देन यू कैन थिंक अबाउट इट. ओके, एसटीपी प्रोग्राम. उसके बाद अगर मान लो कि कोई स्टूडेंट्स अभी ये हालात जो अभी है उसके बेस पर वो सोच रहा है कि मुझे इंडिया में एमफार्म करना चाहिए या मुझे अभी बाहर चले जाना चाहिए, और उसके साथ साथ में मैं ऑस्ट्रेलिया के लाइसेंस के लिए भी प्लान करता हूँ, तो ऐसी सिचुएशन में आप ये सोच सकते हो कि अगर मान लो कि आपने इंडिया में मास्टर्स की तो आप 2 साल इन्वेस्ट करोगे, आपका जो लेवल है वो प्रैक्टिकल लर्निंग एक्सपोजर भी लिमिटेड रहेगा, और दूसरा आपका इंटरनेशनल नेटवर्किंग भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा. तो इंस्टेड ऑफ डूइंग योर मास्टर्स इन इंडिया, इफ़ यू आर थिंकिंग टू गो टू UK and study your master's program there, while you are studying your master's program in UK, simultaneously you can apply for your OPRA exam, okay, and pass the OPRA exam, and also you can put your Australian or New Zealand permanent residency related process. तो आपके पास 2 चीज़ें पैरेलल चलेगी. एक, आप यूके में पढ़ाई कर रहे हो तो यूके यूरोप वाला एक कैरियर ऑप्शंस भी देखोगे, और साथ साथ में आप जो ये ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वाला कैरियर ऑप्शंस है, यू ऑल्सो कैन थिंक अबाउट दैट कैरियर ऑप्शंस एज वेल. ओके, तो आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम 360 डिग्री सोच कर आपके कैरियर के बारे में यहाँ पे भी प्लानिंग कर सकते हो.
अगर आपने अच्छी पढ़ाई की है, अच्छी इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है, आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, ये मैं रियल लाइफ एग्जांपल्स बता रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट्स, कुछ मेरे क्लासमेट्स, दे हैव कंप्लीटेड देयर एजुकेशन फ्रॉम यूके, दे हैव वर्क for the great pharmaceutical and biopharmaceutical company in UK for few years, and then they migrate to US directly on based upon H1B visa, because most of the pharma companies, they are present at multiple locations. Okay, तो आपके पास ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि आपकी अच्छी, इसीलिए बोल रहा हूँ कि अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करोगे, अच्छी पढ़ाई करोगे, अच्छे प्रोग्राम्स को पसंद करोगे, और जो राइट अपकमिंग डिमांड है ऐसे प्रोग्राम को पसंद करोगे, तो आपके कैरियर ग्रेट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप बहुत ही कन्वेंशनल प्रोग्राम्स लेके जाओगे तो आपके पास बहुत ही लिमिटेड स्कोप्स रहेंगे। उसके बाद आप ये भी सोच सकते हो कि जैसे अब पीबीसी भी ऑनलाइन हो गई है, तो जैसे आपने यूके में पढ़ाई की, ऑस्ट्रेलिया के बारे में सोच रहे थे, उसी तरह से आप पीबीसी को भी प्लान कर सकते हो। पीबीसी की इवैल्यूएटिंग एग्ज़ाम भी लिख सकते हो, इवैल्यूएटिंग के बाद आप क्वालिफाइंग की एमसीक्यू भी लिख सकते हो। ये सारी एग्ज़ाम लिखने के बाद आपके पास स्पॉन्सर्ड मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऑन बेस्ड अपॉन दैट यू कैन डायरेक्टली थिंक अबाउट माइग्रेटिंग टू कैनेडा। तो ये स्लाइड का जो पूरा मतलब है वो ये निकलता है कि अभी आज के समय में आपको बहुत ही स्मार्ट बनना पड़ेगा और बहुत ही प्रोएक्टिव बनना पड़ेगा। सुनिएगा, ये वर्ड को याद रखिएगा, प्रोएक्टिव बनना पड़ेगा, क्योंकि आज तक इतनी डायनेमिटिज्म नहीं था। ओके, इसीलिए आप किसी भी देश में जाते थे, आप रिएक्टिव रिएक्शन भी लेते थे तो भी आपको पीआरएन जॉब मिल जाती थी। अब हर एक कंट्री में अपने अपने चैलेंजेस हैं, और जियोपॉलिटिकल समझो, या तो इकोनॉमिकल समझो, या तो एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड समझो, या तो ग्लोबलाइजेशन समझो, कुछ भी समझो, लेकिन ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं, और जो पुराने और कन्वेंशनल आइडियाज़ है उसको वो वैनिश कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अब हम पुराने तरीके से नहीं सोच सकते। आप किसी भी कंट्री में जाओ, आपको एक्टिव रहना पड़ेगा और प्रोएक्टिवली सोचना पड़ेगा कि मेरे पास ऑप्शन ए बी सी डी ई जो है वो हिसाब से मैं प्लान करूँगा। ओके, और आपको जो सक्सेस होने का जो टाइम फ्रेम है उसको छोटा करना पड़ेगा कि भाई मुझे आज मैं जा रहा हूँ तो 5 साल में मुझे ये लेवल की सक्सेस चाहिए ही चाहिए। तो आपके माइलस्टोन्स को सेट करना भी बहुत ज़रूरी है। आज से लेके 5 साल पे यहाँ पे और 10 साल पे यहाँ पे, उसके बाद में ये ऑप्शंस के बारे में सोचूंगा। तो आप 5 साल की होराइजन में रिएक्टिव रिएक्शन में नहीं जा सकते हो। यू मस्ट हैव टू थिंक इन ए प्रोएक्टिव सेक्शन। तो प्रोएक्टिवली नहीं सोचोगे तो आप ये कंपटीशन में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। ओके, तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पे ये 8 डिफरेंट एरियाज बताए। टॉप 10 कोर्सेज को देखो तो ऑस्पेप तो है अपने हिसाब से, उसके कुछ चैलेंजेस भी है, कुछ बेनिफिट्स भी है, लेकिन आप बायोटेक्नोलॉजी एज ए जनरलाइज सब्जेक्ट्स में जा सकते हो, फार्माकोलॉजी एंड ड्रग डिस्कवरी में जा सकते हो। दिस इज़ रियली ग्रेट अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम्स। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में जा सकते हो। अब ये फार्मास्यूटिकल एनालिसिस जो है वो आपको फार्मा, फूड, बायोटेक्नोलॉजी, कॉस्मेटिक, ये सब के एनालिसिस में काम करेगा। तो एज ए एनालिस्ट आपका स्कोप एंड अपॉर्चुनिटी भी बढ़ जाएगा। अगर किसी स्टूडेंट्स को एनालिसिस में इंटरेस्ट है तो ऐसे प्रोग्राम को पढ़ो, रिसर्च में इंटरेस्ट है तो ऐसे प्रोग्राम को पढ़ो। नई जो अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज़ है, प्रिसीजन मेडिसिन, जीनोमिक साइंस, तो आप जनरलाइज में बायोटेक्नोलॉजी पढ़ो। प्रिसीजन मेडिसिन बहुत नैरो करके स्पेसिफिक पढ़ना है तो प्रिसीजन मेडिसिन भी पढ़ सकते हो। फार्मास्यूटिकल साइंस विथ इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस, जो फार्मास्यूटिक्स के बंदे हैं कि जिसको फॉर्मुलेशन में या तो नई नई फॉर्मुलेशन की साइड में काम करना है, तो यू कैन गो इनटू दिस काइंड ऑफ प्रोग्राम्स। कुछ प्रोग्राम्स है बहुत स्पेसिफिक, जैसे नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर भी प्रोग्राम्स है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में, और वो भी रशल ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ सकते हो। एडमिनिस्ट्रेटिव थोड़ा लाइट प्रोग्राम, थ्योरी वाले प्रोग्राम्स पढ़ने हैं तो पब्लिक हेल्थ भी पढ़ सकते हो। फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी एंड न्यूरोसाइंस भी बहुत डिमांडिंग प्रोग्राम है आने वाले समय में, क्योंकि न्यूरोसाइंस में डीजनरेटिव न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स एंड दूसरा जो साइकेटिक प्रॉब्लम्स के नंबर जो बढ़ रहे हैं उसके मेन रीजंस है सोशल आइसोलेशंस, एक्सेसिव मोबाइल यूज़,
तो ये सारी चीज़ों से एंड सोशल मीडिया, ये सारी चीज़ों से न्यूरो साइंस एंड इसका जो डिमांड है दैट इज़ एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग। जीनोमिक एंड डेटा साइंस, जीनोमिक डेटा साइंस भी आज से 3-4 साल के बाद देखोगे तो ह्यूज डिमांडिंग स्कोप है यहाँ पे। बायोफार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट, ये न्यू ड्रग डेवलपमेंट स्पेसिफिकली इन बायोफार्मास्यूटिकल, दिस टाइप ऑफ प्रोग्राम्स ऑल्सो यू कैन सेलेक्ट। उसका मतलब आपके पास जो अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज़ को अलाइन करके बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसके बारे में आप सोच सकते हो, थिंक कर सकते हो। ये तो कुछ ही एग्जाम्पल्स है, आप जैसे सोचोगे ऐसे प्रोग्राम्स आपको यूके में मिल जाएंगे। ओके, बायोफार्मास्यूटिकल रिलेटेड रिसर्च ओरिएंटेड कुछ स्टार्टअप्स को अगर आप देखोगे तो यू कैन गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, जैसे जीन स्लाइसिंग, तो ये भी एक बायोटेक्नोलॉजी एंड जीनोमिक साइंस की डायरेक्शन में काम करने वाला स्टार्टअप है। रीवायरल के बारे में देखोगे तो दिस द डिफरेंट काइंड ऑफ एंटीवायरल थेरेपीज। ओके, अभी एंटीवायरल थेरेपी में हमारे पास 2 ही ऑप्शंस थे, कुछ जो पुराने वाले थे वहाँ पे हम एंटीवायरल मेडिकेशंस देते थे। ज़्यादातर वायरल इन्फेक्शन के बारे में हमें वैक्सीन्स के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता था। ये जैसे कोरोना वायरस की जो सिचुएशन आई तो पूरे वर्ल्ड में हाहाकार क्यों मच गया, क्योंकि वैक्सीनेशन के बाद हमने वायरल मेडिसिन पे बहुत ज़्यादा कुछ रिसर्च किया ही नहीं था और एंटीवायरल मेडिकेशंस के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया। तो अब आने वाले टाइम में इस तरह के कुछ पेंडेमिक्स आते हैं तो इसके लिए बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजी के ऊपर भी फोकस हो रहा है। ओके, इम्यूनोथेरेपी, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स भी बहुत बढ़ रहे हैं और इम्यून इम्प्रूव करके कैंसर की ट्रीटमेंट के ऊपर भी बहुत फोकस हो रहा है। ओके, यहाँ से ये जो आप देख रहे हो पर्सनलाइज मेडिसिन, इसका जो एक हायर वर्जन है, कैंसर के पेशेंट्स में इंडिविजुअलाइज्ड वैक्सीनेशन का कॉन्सेप्ट आएगा, इंडिविजुअलाइज्ड वैक्सीनेशंस। ओके, तो ये दोनों को अगर आप कंबाइन करोगे, ओके, तो इस तरह का कुछ नया इनोवेशन भी हो सकता है। अल्जाइमर्स, ये न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स है, तो न्यूरो डिजेनरेटिव्स में भी बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। ओके, और ये साइकेडिक मेडिसिन का यूज़ करके न्यूरोसाइकेट्री की कंडीशंस को ट्रीट करने के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं। इम्यूनोलॉजी एंड ऑन्कोलॉजी के प्रॉब्लम्स के ऊपर एंड हेल्थ डायग्नोस्टिक्स। ओके, अब डायग्नोस्टिक के ऊपर क्या रिसर्च हो रहे हैं, खास करके मोस्ट ऑफ द डिजीज़ कंडीशन को डायग्नोस करने के लिए बहुत लंबे समय के बाद हमें पता चलता है। दैट मीन्स कैंसर जब वो एंड स्टेज पर पहुंचता है तभी जाके हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ऐसे डायग्नोस्टिक टूल्स एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में ऐसे रिसर्च होना स्टार्ट हो गया है कि जितना अर्ली हम डिटेक्ट कर पाएंगे उतना बेहतर रिजल्ट हम दे पाएंगे। तो आपको अलाइन होना पड़ेगा आने वाले समय में डेवलपिंग कंट्री में क्या डिमांड आ रही है, डेवलप्ड कंट्री में क्या डिमांड है। तो अगर आपको डेवलप्ड कंट्री में सेटल होना है, वहाँ पे जॉब और एम्प्लॉयमेंट के बारे में सोचना है, तो वहाँ पे जो स्टार्टअप्स और अपकमिंग टेक्नोलॉजी जिस डायरेक्शन में ग्रो कर रही है उसके साथ आपको अलाइन होना पड़ेगा। आपको ऐसे प्रोग्राम्स पसंद करने पड़ेंगे, वो लेवल की यूनिवर्सिटी में पसंद करने पड़ेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको खुद को भी डायनेमिक करके बहुत सारे वेरिएंट की तरफ देख के चलना पड़ेगा। कुछ स्कॉलरशिप्स है, स्कॉलरशिप्स को हम ब्रॉडली 3 भाग में डिवाइड कर देते हैं। ओके, ये सारी स्कॉलरशिप को हम एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाते हैं। सबसे पहले ये समझो कि आपको आपके एकेडमिक्स के बेस पर स्कॉलरशिप मिल गई। दैट मीन्स कि आपकी प्रीवियस एजुकेशन, इंग्लिश जो भी है उसके बेस पर आपको एक अमाउंट की स्कॉलरशिप मिल गई। दैट इज़ द एंट्री लेवल स्कॉलरशिप, दिस इज़ द एंट्री लेवल स्कॉलरशिप। दूसरी होती है कि आप जब वहाँ पे पढ़ने के लिए जाते हो, आपका परफॉर्मेंस कैसा है, और आप यूनिवर्सिटीज़ में डीन या तो आपके प्रोफेसर के पास या तो कुछ जो इंस्टीट्यूट्स है उसके पास से आप स्कॉलरशिप के लिए प्लान कर सकते हो, लेकिन ये भी बहुत डिमांडिंग होती है। ये एंट्री लेवल पर है, ये परफॉर्मेंस बेस्ड है। और तीसरी जो है वो इंस्टीट्यूट्स बेस्ड है। उसका मतलब क्या हुआ कि जैसे आपको मास्टर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन मिल गया, आप टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहे हो, आपने कुछ प्रोग्राम के ऊपर रिसर्च कर लिया, उसके ऊपर आपने एक ऐसे लिखा,
कि इफ़ आई एम गोइंग टू कंप्लीट दिस प्रोग्राम, माय विजन इज़ टू स्टडी दिस प्रोग्राम, और ये प्रोग्राम में मैं ऐसा ऐसा करूँगा और इससे समाज में इतना बड़ा बदलाव आ सकता है। तो आपका जो विज़न है वो एक सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में अगर दिखता है और सोसाइटी के बहुत बड़े मास को वो टारगेट करता है, ऐसा आप अगर ऐसे के थ्रू, आपके स्टेटमेंट्स के थ्रू लिख के भेजते हो, तो आपका प्रीवियस रिसर्च एक्सपीरियंस, एकेडमिक्स एंड आपका प्रपोज्ड प्लान, ये सारी चीज़ों को अलाइन करके ये सारी इंस्टीट्यूट्स आपकी आर्टिकल्स को रिव्यू करके उसमें से टॉप कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करके वो स्कॉलरशिप देती है। ओके, तो आपको कैटेगरी समझ में आ गई होगी। एक होगी एंट्री लेवल, दूसरा होगा परफॉर्मेंस, और तीसरा होगा कि कुछ फिलैंथ्रोपिक इंस्टीट्यूट्स है वहाँ से आप स्कॉलरशिप ले सकते हो। ओके, अब ये सारी चीज़ें आपको यूके के बारे में समझ में आया। अब फार्मा विजन कैसे काम करता है? हमारा जो एक काम करने का एक फ्रेमवर्क है वो बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है। सबसे पहले वी आर क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग द स्टूडेंट्स कि आपको क्यों और कहाँ पे कैसे पढ़ना चाहिए और क्या पढ़ना चाहिए। उसके बाद वी आर गोइंग टू प्रोवाइड ए कॉम्प्रिहेंसिव कस्टमाइज्ड इंडिविजुअल काउंसलिंग। तो आपका काउंसलिंग होगा कि आप ये कंट्री में पढ़ने के लिए जा रहे हो, तो आपके रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन ये होने चाहिए, ये प्रोग्राम पढ़ना चाहिए, इसमें इतना खर्चा आएगा, ये सारी चीज़ें आपको काउंसलिंग के पार्ट में समझाई जाती है। दैट्स कॉल्ड द कस्टमाइज्ड कैरियर काउंसलिंग। वंस योर कस्टमाइज्ड कैरियर काउंसलिंग इज कंप्लीटेड, योर रोड मैप इज गोइंग टू बी क्लियर। वो क्रिएट करेंगे तो उसमें आप यहाँ से लेके, ये आपका पहला माइलस्टोन है, आपका ये दूसरा माइलस्टोन है। तो आपको 3 से 5 साल का पहला माइलस्टोन के बारे में बताया जाएगा, एक रोड मैप दिया जाएगा। वो रोड मैप को आपको फॉलो करना है। अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स आती है तो उसको डी रूट करके जा सकते हैं। ये सीधी लाइन जो हमने बनाई है वो शायद ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन आया तो हम यहाँ से डी रूट करके बिल्कुल ही नया प्लान नहीं बना देंगे, हम यहाँ से ऐसे करके जाएंगे। हमारा गोल तो यही है, दिस इज़ द गोल नंबर 1, तो इसको ही अचीव करना है। टारगेट ये रहेगा कि वी हैव टू ट्रैवल दिस जर्नी फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट विद द मिनिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम एंड मनी। ओके, इस तरह से हम प्लानिंग बनाएंगे। कंसल्टेशन मतलब फार्मा विजन इज़ अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर करियर रिलेटेड नीड्स। मतलब प्लानिंग हो गई, आपका एडमिशन हो गया, वीज़ा हो गया, आपकी लाइसेंसिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन हो गई, उसका स्टडी मटेरियल हो गया, एवरीथिंग यू विल गेट इट फ्रॉम फार्मा विजन। ओके, अब अगर आपको लाइसेंसिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करनी है तो इसका कोचिंग, उसका डॉक्यूमेंटेशन, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर बाय अस। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको मेंटरशिप एंड नेटवर्किंग, लाइक माइंडेड स्टूडेंट्स के साथ में आपका नेटवर्किंग होगा, एंड वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द कंटिन्यूस मेंटरशिप। इसका मतलब फार्मा विजन इज़ योर कैरियर पार्टनर एंड इज़ अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर कैरियर रिलेटेड नीड्स। ठीक है, अब आप फार्मा विजन की कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो। माई फार्मा विजन से आपको सारी जगहों पे मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम है, फेसबुक, यूट्यूब, सारी जगहों पे। उसमें अलग अलग टाइप के कंटेंट आपको मिलेंगे। कुछ एजुकेशनल मिलेंगे, जैसे आपको कुछ पढ़ाया जाएगा, कुछ कैरियर अवेयरनेस के बारे में होगा, कुछ और कैरियर के बारे में होगा। एवरीथिंग यू आर गोइंग टू गेट इट इन आवर कम्युनिटी प्लेटफॉर्म्स। ओके, और जिसको फिज़िकली मिलने आना है वो आ सकते हैं। ये हमारा ऑफिस का एड्रेस है एंड दिस आर द कॉन्टेक्ट डिटेल्स, और ये हमारी वेबसाइट। ओके, तो इस तरह से आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। नाउ इट्स टाइम फॉर क्वेश्चन आंसर। अगर आपको कोई क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हो। Okay, I think students, if you have any question, any doubt, तो आप पूछ सकते हो। अखिल कोहली का क्वेश्चन,
Which one is better, OPRA, OSPEP or PEBC? Look, OSPEP is not an exam. OSPEP is a course. You have to study 1 year course. After that you have to write the exam, that's called the GPHC. वो UK के लिए है. OPRA and PEBC both are pretty much similar exam, pretty much similar. PEBC also has changed their syllabus and OPRA has changed their syllabus and they are come to closer. Okay. Only difference is PEBC is expecting the candidate, those who are writing the evaluating exam, they should have a Canadian healthcare system के बारे में पता होना चाहिए. तो वो पॉइंट से PEBC थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लेवल पर अगर आप उसको 2 पॉइंट्स ज़्यादा दे सकते हो डिफ़िकल्टी के. ओपरा वहाँ पे थोड़ा आपको कंपनसेशन डिस्काउंट देता है कि भाई आप फॉरेन कंट्री में पढ़े हो, वहाँ पे बड़े हुए हो, तो आपको ऑस्ट्रेलिया के लाइसेंस के बारे में यहाँ के लॉ के बारे में अभी आपको पता नहीं होगा. आप जैसे ट्रेनिंग करोगे तो आपको पता चल जाएगा, तो हम दूसरी एग्ज़ाम में उसको कवर कर लेंगे. तो ये एक मेजर डिफरेंस है. दूसरा ये है कि PEBC जो है उसमें लिमिटेड अटेम्प्ट्स है, आप 3 बार ही लिख सकते हो. ओपरा आप मल्टीपल टाइम लिख सकते हो. इसीलिए अगर बहुत क्रिस्टल क्लियर पॉइंट में ओपरा इज लिटिल बिट मोर कन्विंसिंग साइड, PEBC इज लिटिल बिट थोड़ा सा 2-5% थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड पे है. लेकिन कनाडा में फार्मासिस्ट जो है वो आपने PEBC कर लिया, उसका मतलब 110% PEBC इवैल्यूएटिंग पास कर ली तो PR कंफर्म है. फार्मासिस्ट बन गए तो 1.5 लाख से 2 लाख डॉलर तक भी कमा सकते हो. ओके, तो PR और पैसों के मामले में कनाडा इज़ लिटिल बिट बेटर कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया, पर ऑस्ट्रेलिया वेदर वाइज अच्छा है. इस तरह से दोनों के प्रोज एंड क्रोज है, दोनों के अपने अपने बेनिफिट्स एंड डिसएडवांटेजेस. बट इतना कुछ खास डिफिकल्ट नहीं है, दोनों सिमिलर लेवल पर रख सकते हो. ओके, एनी अदर क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन? Which one do you suggest personally among UK, Canada or Australia? Okay. तीनों के अपने अपने बेनिफिट्स है. एंड अखिल, आपको मैं बता दूं कि डिसीजन मेकर्स आप हो, मैं आपको एडवाइज़ करूंगा. तीनों के प्रोज एंड कॉन्स बताता हूं. ऑस्ट्रेलिया इज़ रियली गुड कंट्री बट लिटिल बिट एक्सपेंसिव, 2 साल की पढ़ाई करनी है. कनाडा
आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना है, एजुकेशन में यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगी लेकिन आप कॉलेज में पढ़ोगे, वो एक नेगेटिव पॉइंट्स है। दूसरा नेगेटिव पॉइंट ये है कि आप जब पढ़ाई करने जाते हो तो पार्ट टाइम जॉब में दिक्कत आ सकती है कनाडा में। पॉजिटिव पॉइंट है, कनाडा में अगर आप पढ़ते हो तो रिलेटिवली एक्सपेंस कम होता है। अगर ऑस्ट्रेलिया में आप $50,000 का खर्चा कर रहे हो तो कनाडा में 2 साल की पढ़ाई करोगे तो आपको खर्चा आएगा $35,000 के करीब। ओके, तो ये एक बेनिफिट है कॉस्ट के वाइज से। अब कनाडा में आप पढ़ने जा रहे हो, अगर आपको 100% कॉन्फिडेंस है कि आप पीबीसी कर ही लोगे, वो लेवल का आप कमिटमेंट लेके जा रहे हो, तो बेस्ट ऑप्शन इज कनाडा। लेकिन अगर आपने पीबीसी नहीं किया तो कनाडा इज द वर्स्ट कंट्री। तो डिपेंड अपॉन आप कितने लेवल के कॉन्फिडेंस के साथ जा रहे हो। अगर आप पीबीसी 100% कर लोगे तो कनाडा इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अगर आपको लगता है कि आपको बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, आपको थोड़े टाइम के लिए रहना है, आपको अच्छी से यूनिवर्सिटी एजुकेशन करना है, फार्मासिस्ट बनना है पढ़ाई के साथ साथ में, और कुछ नया लर्न करना है, तो ऑस्ट्रेलिया इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अगर आप ये सोचते हो कि आप रिसर्च फोकस्ड हो, 1 साल की पढ़ाई करनी है और मुझे खुद के ऊपर बहुत अच्छा कॉन्फिडेंट है, मुझे फार्मासिस्ट लाइसेंस के झमेले में नहीं जाना है, लेकिन मैं इंडस्ट्री और रिसर्च के कैरियर ऑप्शंस के बारे में ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, तो यूके इज़ द बेस्ट ऑप्शन। समझ में आया कि आप 100% लाइसेंस कनाडा, 100% नहीं लाइसेंस यूके। अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको लाइसेंस और पढ़ाई दोनों के ऊपर बैलेंस करना है, आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स और सारी चीज़ें जस्टिफाई कर रही है ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा के लिए, तो आप ऑस्ट्रेलिया को थिंक कर सकते हो। अकेल, डज दैट एड वैल्यू इन योर अंडरस्टैंडिंग? अगर आप समझ सकते हो, समझ रहे हो, तो प्लीज़ मेंशन यस, दैट कैन एड वैल्यू। आपका क्वेश्चंस आंसर्ड हो गया है, ऐसा समझ में आया आपको कुछ? क्योंकि मैं क्रिस्टल क्लियर आपको नहीं बोल सकता हूँ ना, किसी को जामुन पसंद है, किसी को लड्डू पसंद है, किसी को और पसंद है। तो मैं ये बता सकता हूँ कि इसके ये प्रोज है, इसके ये कॉन्स है, इसके ये एडवांटेजेस है, आपके पर्सनल सर्कमस्टेंसेस, आपका लॉन्ग टर्म व्यू, ये सारी चीज़ों के बेस पर से आपको डिसाइड करना चाहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। और कोई क्वेश्चंस? ओके, 5 सेकंड वेट करते हैं, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन एंड हैव अ ग्रेट टाइम।